welcome you all to this seminar on Business Beyond Boundaries, Entrepreneurial Thinking for MBA. Today's session aims to ignite the entrepreneurial spirit within us and help us see beyond conventional boundaries in business thinking. We are privileged to have with us a visionary leader, Sri Sandeep Thalotia, who currently serves as the National Vice President of the Indian Council of Small Industry. A graduate in botany, he has transformed his academic brilliance into entrepreneurial excellence. He has over the years built a legacy across manufacturing, trading, and international export and import. He has served as President of Raniganj Chamber of Commerce for 3 consecutive terms, led the Rotary Club of Raniganj as a past president and assistant governor, and received an outstanding 16 awards in a single year, including Best President and Best Club under Rotary District 3240. He is also been a member of the West Bengal Industrial Promotion Board and has actively contributed to MSME policy formulation at both state and national levels. Remarkably, he represented India in a 22-day international study mission to Beijing, China, invited by the Ministry of Commerce of the Republic of China, where he delivered a speech as guest of honor. His pre-recorded speech on the Internet of Things delivered to a global audience of 2 million, and his role as a motivational speaker for the employment exchange of the government of West Bengal reflects his dedication to knowledge sharing and youth empowerment. Truly, his journey is an inspiration for all of us who aspire to make an impact in the world of business and entrepreneurship. Now, I request our HOD sir, Professor Dr. Sonam Siddhartha sir, to welcome him with flower bouquet and say a few words of praise. Good afternoon, everyone. Present out here. Am I audible? So, I heartily welcome Mr. Sandeep Thalotia to our institute and Faculty of Management Studies. I am very grateful that Mr. Thalotia has agreed to take time off his busy schedule and has come over having an interactive session with our students. Specifically, if you look into the landscape today of business landscape rather. So, if you look into it, obviously getting into the industry is the top priority. But apart from that, as we move on for a few decades, I think it was off. So. Fine. So, I was audible, I think? Yes. So, considering the landscape today, the business landscape, getting into an industry, working there obviously is contributing to the industry and adding value. But apart from that, your entrepreneurial mindset is also very important. If you look back into the last decade or so, focus has been from the government side also on startups. So with this point of view, sort of having Mr. Thalotia, who is a very successful entrepreneur, with us, sharing his time. So I think all of us will learn a lot from Mr. Thalotia today, and there would be a lot of takeaways. So I request our students to have their pen and diary with them so that they can note it down. So here's to a very interesting session. Thank you, everyone. Sir, it's all yours.
sir. Good afternoon all. हिंदी में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्योंकि हमारे सीमांचल कोयलांचल के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट डॉक्टर BC राय इंजीनियरिंग कॉलेज दुर्गापुर ने मुझे आमंत्रित किया है। आप सभी जो कि MBA के स्टूडेंट हैं और आपके साथ थ्योरेटिकल या एकेडमिक रूप से आप जो भी सीख रहे हैं उसके अलावा प्रैक्टिकल रूप में अगले कुछ वर्षों में या आपके जीवन काल में आपकी रोजी रोटी या आपके प्रोफेशन से संबंधित जो भी एक एस्पेक्ट है उसके रूबरू कराने के लिए और उससे आपको अकस्टम कराने के लिए उसके कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मेरा नाम संदीप भालोकिया है और मैं रानीगंज में रहता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, एक इंडस्ट्री चलाता हूँ और कुछ थोड़ा बहुत मैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करता हूँ। चूँकि मैं कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को लीड कर चुका हूँ, हमारे लोकल लेवल में, स्टेट लेवल में, सेंट्रल लेवल में, तो मेरे साथ मेरा अपना एक्सपीरियंस तो है और मेरे जो साथी हैं जो बिजनेस करते हैं उनका भी जो एक्सपीरियंस है हर तरह का, उसके कुछ एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए और कुछ आपके लिए सुझाव, सलाह और कुछ घटनाएं, कुछ चीज़ें जो आपके लिए हो सकता है आगे चलकर आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर का काम करे, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज जब अपने कोर्स को पूरा करेंगे, यहाँ से जब आप जाएंगे तो आपकी पहली चिंता होगी कि अपने प्रोफेशनल करियर को आप कैसे स्टार्ट करें, अपने प्रोफेशनल करियर को आप कैसे लें, या आपके मन में यह चिंता होगी कि क्या करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल रूप में तो है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में आपको कहीं ना कहीं या आपके पेरेंट्स को या आपके जो भी वेल्विशर्स हैं उसके लिए इशू बनी हुई है। टारगेट क्या है आपका? आपका पहला टारगेट है टू बी सक्सेसफुल। किसी का कोई ड्रीम है, सपना है टू फुलफिल योर ड्रीम, और अंत में एक टारगेट होता है टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग इन योर लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ। मेरे हिसाब से ये 3 टारगेट होते हैं जो मैंने समझ में आया, सो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ लाइनें हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा की हर तकदीर से पहले बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आपने सुना होगा ये, लेकिन इसका मतलब क्या है और इसको व्यवहारिक जीवन में आप किस तरह से अंगीकार कर सकते हैं, अपने में ले सकते हैं, इसको यूज कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम अगले समय में आपके साथ चर्चा करेंगे। उसका एक और पॉइंट है, एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारो, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह जो 2 लाइन है इसको आप अपने में चरितार्थ कर सकते हैं, इसको आप सही सिद्ध कर सकते हैं अपने जीवन में। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अपने जीवन में इसको नहीं आगे कर सकते हैं। जो सपने देखते हैं या आप जो देखते हैं जो सक्सेसफुल पर्सन है आपके शहर में, आपके राज्य में, देश में, विदेश में, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी के कुछ पलों को, कुछ चीज़ों को, कुछ एस्पेक्ट को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने जो आपको कहा कि आपका एक सपना होना चाहिए, वो सपना को पूरे करने की आप में एक विजन होनी चाहिए कि उस सपने को हम पूरा कैसे करें। सपने को पूरा करने के लिए कुछ मॉडलिटीज़ हैं, तौर तरीके हैं, जो भी उसके सिस्टम है उसके साथ आपको जोड़ने के लिए, उसके साथ आपका एक लिंकिंग करने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए भी हम लोग यहाँ पर उद्यत है। आपके समझ प्रस्तुत कर हमारे जो भी दायरे हैं, हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं वो आपके काम आने लायक है। क्या होना चाहिए? आप में कमिटमेंट और कंसंट्रेशन होना चाहिए। अगर आप किसी सपने को लेते हैं और उसका विजन रखते हैं, आप में सबसे पहले ये होना चाहिए कि उस टारगेट को मैं या उस विजन को मैं या उस चीज़ जिसको मैं मुझे चाहता है उसको मैं पूरा कैसे करूँगा। जो मैंने अपने जीवन में भी बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंटली आपको कह सकता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें से अगर आप 25 या 50% भी अगर उसको कर पाए तो अगले कुछ समय में आप देखेंगे कि नहीं मैंने तो ये कर दिखाया। इसीलिए मैं आज यहाँ पर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले करना क्या है, जो मेरे टीचर ने मेरे को 9th क्लास में बताया था कि अगर आपका कोई टारगेट है, आपका कोई सपना है, तो आपको उसी में नहाना धोना, खाना पीना, उठना बैठना, सुनना, हंसना रोना धोना है। सिर्फ उस पर और उस पर कंसंट्रेट कीजिए, और वो कंसंट्रेशन इज द की टू सक्सेस। अगर आप कंसंट्रेट कर लेते हैं
तो आपका बहुत सारा पार्ट कंप्लीट होने लगता है। अगले कुछ समय में मैं इसमें और चर्चा आपके लिए करूँगा। सब कुछ अपने ध्येय के लिए ही आपको करना है, ध्येय मतलब टारगेट। और जब तक काम पूरा ना हो आपको नींद नहीं आनी चाहिए। आप फिजिकली तो सोएंगे लेकिन मेंटली आपको नींद नहीं आनी चाहिए। टारगेट इज योर अल्टीमेट गोल। कंसंट्रेशन विद कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट अगर आप हैं, आपको अपने टारगेट को पूरा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी कंसंट्रेशन के साथ, ये लाइन को आप लिख लीजिए आपके कहीं पर भी तो आपके काम आएगा। कंसंट्रेशन विद कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आप अगर किसी काम को असंभव नहीं मान रहे हैं और अगर उसको धीरे धीरे समझ नहीं कर रहे हैं, एक समय आप पाएंगे कि उस काम को आप करने की तरफ बढ़ गए हैं और कहीं ना कहीं उस काम को आप अचीव भी कर पाएंगे, उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, आपको गोल को अचीव कर पाएंगे। और उसके लिए एक बढ़िया प्रोसेस है मेडिटेट करना। अगर आप मेडिटेट नहीं करते हैं तो आपका पेस जो होगा वो स्लो हो सकता है। मेडिटेट अगर आप करते हैं तो कंसंट्रेशन में आपको हेल्प मिलेगी और आप उस कंसंट्रेशन के द्वारा अपने जो टारगेट है उसको पूरा कर पाएंगे। हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। हार्ड वर्क तो आपको कंसंट्रेशन के साथ करना ही है, क्योंकि आपका सिर्फ काम ही वही है कि आपको जो आप स्टूडेंट लाइफ में आपका फिलहाल काम है पढ़ लिख के आपका जो प्रोफेशनल लाइफ को आप जो अचीव करना चाहते हैं उसको आगे बढ़ के और उसको हम लोग को कंप्लीट करना है, ताकि वो जो आप यहाँ पर जाना चाहते हैं, जो आपका टारगेट है, सबका टारगेट एक जैसा नहीं होता। सबका टारगेट कोई का कुछ टारगेट है, कोई का कुछ टारगेट है, वो अपने टारगेट को आप अचीव कर पाएंगे। आपके अगर कंफर्ट जोन में आप रहना चाहेंगे, कंफर्ट जोन आपको कभी भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, आपको तो कहीं ना कहीं उससे निकलना पड़ेगा। अगली कुछ लाइनों में मैं आपको बताऊंगा। परसिवरेंस, कंसंट्रेशन के साथ परसिवरेंस शब्द नहीं है, अपने में आपके जीवन को जीने का एक तरीका है। अगर आप इसको पकड़ लेते हैं इन शब्दों को, अगर आप कर पाते हैं, चूंकि मेरे अपने जीवन के बारे में भी आपको बताऊंगा शॉर्ट में, तो आपको समझ में आएगा परसिवरेंस का क्या मतलब है। डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का ये मतलब है, डिसिप्लिन का मतलब तो आप भली बात ही समझते हैं, क्योंकि आप जहाँ पर है वहाँ डिसिप्लिन का एक उच्च मानदंड आपको एक लेवल मिलता है, तो आपको उसके बारे में ज़्यादा बताने की मुझे नहीं लगता है जरूरत नहीं। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये है आपको जो अचीव करना है उस अचीवमेंट को करने के लिए आपके बीच में जो भी बाधाएं आ रही है या जो भी डिस्ट्रक्शन आ रही है, तो सेल्फ कंट्रोल के द्वारा आप उसको मैनेज कर सकते हैं। एक जो जीवन का सबसे बड़ा एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जो आज आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, आपको लिमिटेड लोगों के साथ मिल रहा है। लेकिन जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलेंगे और आपको जब अपने बड़े हॉरिजन में आपको काम करना है, उस समय आपको कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन याद रखिएगा, बाद में आपको जीवन भर नहीं याद रहेगा कि कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। उसमें ग्रीटिंग्स, किसी को मान लीजिए आपको कम्युनिकेशन करना किसी को, तो ग्रीटिंग्स ऑब्लिजेटली सपने की तरह आपके टारगेट या आपकी चीज़ों को अचीव करने में हेल्प करते हैं। मेरा लड़का है कोलकाता में पढ़ रहा है, हम उसको हमेशा सिखाते हैं, उससे क्या हम्बल होते हैं, लोगों के साथ आप कनेक्ट कर पाते हैं। ग्रीटिंग्स ऑब्लिजेटरीज बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अगर आप करते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं करते हो तो ग्रीटिंग्स ऑब्लिजेटरीज आपके जो जरूरतमंद लोग हैं, या आप अगर मैं आपको बताऊँ इसमें एक एग्जाम्पल देता हूँ, आने बाद में देता है, लेकिन अभी देता हूँ। डीवीसी में मेरा बिजनेस चलता है दुर्गापुर में। एक ऑफिसर थे मिस्टर घोष, एस घोष, मैं हमेशा उनको ग्रीटिंग्स भेजता था। 10 साल बाद जब मैं कोई जरूरी काम से उनसे मिला, वो मेरे को बोले भलोटिया जी हम आपको जानते हैं और चूंकि आपका ग्रीटिंग्स मेरे को मिलता था तो मेरा आपके प्रति बढ़िया इंप्रेशन है। बस इस बात को पकड़िएगा, जीवन में बहुत काम है। ग्रीटिंग्स से आप उस व्यक्ति को अचीव कर सकते हैं या प्रेजेंटली से अच्छे शब्दों अच्छे व्यवहार द्वारा, जो सपने की तरह काम करता है, अचूक वो अष्ट हो गया। टीम वर्क, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, ये आप जब एक्सपीरियंस आपको होगा तो आप उस समय सीख पाएंगे कि सेंट्रलाइज कहाँ पर करना है, आपको खुद को कहाँ पर करना है और अपने टीम के जो लोग हैं उनके साथ आपको कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि अकेला व्यक्ति एक लिमिटेड काम कर पाएगा और टीम वर्क में आप जितना अनलिमिटेड काम कर पाएंगे, ये देखा गया है। एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स एंड दोज हु अंडरस्टैंड यू एंड हेल्प यू टू मेक डिसीजंस।
उन व्यक्तियों के साथ रहिए जो आपको समझते हैं, जो आपके ड्रीम को पूरा करने में हेल्पफुल हो, क्योंकि वो आपको मोटिवेट भी करेंगे और आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि मैं हमारे दोस्त में आज भी कुछ होता है तो मैं जाके अपने जिस पर मुझे विश्वास है उनसे पूछता हूँ मैं ये कर रहा हूँ या मेरे को ऐसा करना है, और वो मेरे को मेरे विजन के हिसाब से, तो एक व्यक्ति गलत हो सकता है, 2 या 3 व्यक्ति गलत होने में संभावना बहुत कम है। हम गलत कर सकते हैं, लेकिन जब 2-3 आदमी जब मिलते हैं ना तो मंथन होता है, मंथन के बीच बाद उसमें से सही डिसीजन निकलता है। इग्नोर थॉट्स ऑफ योर टीममेट्स, बी जेनरस। अगर आपके टीम में आप काम कर रहे हैं और अगर आपके टीम के कोई मेंबर अगर गलती कर रहे हैं तो उसको इग्नोर करिए और आगे बढ़िए, ये आपका टीम वर्क में बहुत बड़ा हेल्पफुल है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ डेडिकेटेड, रिलायबल, नॉलेजेबल पर्सन से आप मिलिए, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपके टारगेट को, आपको आगे बढ़ने में हेल्पफुल हो और वो मोटिवेट भी आपको करेंगे। गेट रीड ऑफ फियर ऑफ लॉस and accept mistakes which are part of life. Learn to accept defeat, failure, and make plan B after any mishappening, and proceed to your next move to get your work done. प्रैक्टिकल लाइफ में आप जब जाएंगे तो आपको हर समय ये डर पैदा रहेगा कि मैं कहीं हार ना जाऊँ या मैं कहीं गलत इंप्रेशन नहीं कर लूँ या फिर मैं ऐसा कुछ नहीं कर लूँ जिससे मुझे कहीं ना कहीं सोसाइटी के रूप में, सोशल रूप में कहीं ना कहीं मुझे यह फील कराया जाए कि आप एक फ्लॉप है या आप एक अपने काम को अचीव नहीं कर पाए और दूसरा कोई अचीव कर दिया। इस चीज़ से अगर आप मुक्त हो जाते हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस बेल्ट के बड़े बड़े बिजनेसमैन का जो एक्सपीरियंस है, कभी भी असफलता से मत डरिए, क्योंकि असफलता सिर्फ एक स्टेज है, असफलता फाइनल कभी नहीं होती किसी भी चीज़ में, किसी भी एस्पेक्ट में। उससे डरने की जरूरत नहीं है। आपको हो सकता है उसके बावजूद भी आपको टाइम लगेगा इस चीज़ को समझने में, लेकिन यह बात याद रखिएगा। और अगर कोई गलती आपने कर ली है जीवन में तो उसे एक्सेप्ट करिए। अगर आप एक्सेप्ट कर लिए आपका आधा से ज़्यादा काम हो गया, क्योंकि तब आपके माइंडसेट में जाना है कि आपको आगे बढ़ना है, उसको क्या तो दुरुस्त करना है और या फिर आगे बढ़ के दूसरा काम में आपको लग जाना है। यह आपके लिए बहुत रामबाण एक तरह की दवाई है आगे बढ़ने में। कुछ एक्सपर्ट्स का जो एडवाइस है जो वो देते हैं दूसरों को, जिसमें मेरे को भी कभी कभी मिला है, या स्टेट या सेंट्रल लेवल पे जब वो लोग हम लोग के साथ वार्तालाप करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो वो बताते हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो आप चाहते हैं सब कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन उसकी एक बाउंड्री होती है, लिमिट होती है। उस लिमिट को अगर आप सेट कर लेंगे आप अपने जो टारगेट को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ जाए। Get rid of means of distraction and be alert for such means. बहुत बार क्या होता है कि आप बहुत ब्रिलियंट है, आप बहुत लग रहा है कि आप टॉपर हैं, सब कुछ है। मैं भी अपने स्कूल में 3rd टॉपर रहा हूँ और कॉलेज में टॉपर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना किसी न किसी तरह से, पारिवारिक कारणों से भी हो सकते हैं, पर्सनल हेल्थ कारणों से भी हो सकते हैं। तो उस चीज़ को आप अगर समझ लेते हैं और उसके आगे बढ़ने की अगर चेष्टा करते हैं तो वह आपके जो सपना है उसके बारे में बताऊँ, सपना क्या हो सकता है, कहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो पाने में आपको बहुत अच्छा एक एडवांटेज मिलेगा। जो मैंने 9th क्लास में सीखा था, मेरे टीचर ने समझाया था, बहुत डिसिप्लिन थे वो, आर्मी बैकग्राउंड से। डू योर डेजिग्नेटेड ड्यूटी ऑन टाइम वेदर दिस गिव रिजल्ट और नॉट। जब मैंने बोर्ड अच्छा नहीं किया, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं खुद तय कीजिए कि आपकी क्या जिम्मेदारी है, परिवार के प्रति, अपने प्रोफेशनल लाइफ के प्रति, आपके समाज के प्रति, आपके कॉलेज के प्रति, आपके दोस्तों के प्रति। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को तय कर लेते हैं और डिसीजन लेने में सक्षम है कि आपकी क्या जिम्मेदारी है, उसको आप अगर करने की चेष्टा भी करते हैं, कितना कर पाते हैं ये देखना आपका काम नहीं, उस समय आपका डिसाइड करेगा। लेकिन अगर चेष्टा करते तो आप एक ईमानदार व्यक्ति, और ईमानदार व्यक्ति कभी किसी से नीचा नहीं झुकेगा, और चूँकि आपको अपने कर्म में ईमानदार आता है, अगर आप अपने कर्म को करने की चेष्टा भी कर रहे हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है। और एक समय आपको वो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ और ऐसी जगह पहुंचा सकता है कि जितने भी लोगों को देखा गया जो सक्सेसफुल है, चाहे वो साधारण बैकग्राउंड से हो या उनको पहले से कोई एडवांटेज हासिल हुआ, डिसिप्लिन, परसिवरेंस और या डेजिग्नेटेड ड्यूटी का जो जज्बा है
वो आपको उस चीज को अचीव करने में हेल्पफुल होगा जो आपने सोचा भी नहीं हो। फॉलो ट्रेंड्स बट बी केयरफुल एंड फिल्टर दोज थिंग्स which are not consistent timely and irrelevant with time। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, अभी आपको लग रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन आपको वो विजन रखना पड़ेगा कि आपको ये लिए टेम्पोररी है या आपको लॉन्ग टर्म में फायदा मिलेगा, ये आपको खुद समझना है। क्योंकि गलतियां करने के लिए मनुष्य आप गलती करेंगे, गलतियों से सीखिए, एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए। ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो 100% सफलता आपको मिलनी ही है, क्योंकि यह एक ट्रेंड है जीवन का। ट्रेंड मतलब जो हम लोग जो ट्रेंड समझते वो नहीं, पक्का मिलेगा। लिसन टू योर कंसाइंस इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन। अगर आपको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत हो रही है, ये जो है ये नहीं, ये जो है ये कभी गलत नहीं बोलता है, मैं भी ऐसा करता हूँ। आप निश्चिंत होकर इसकी जो आवाज़ है सुन सकते हैं, अपने भीतर से जो आवाज़ है उसको सुनिए, क्या सुनिए। Help others in any way which gives you strength, joy of giving is an awesome habit। देखिए आप स्टूडेंट हैं, आप बोल सकते हैं हम तो बच्चे हैं, आप हमारे पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन अगर आप किसी को कुछ देने की अगर क्षमता रखते हो तो दुनिया में उससे बड़ा कुछ नहीं है। जो ले रहा है वो हमेशा छोटा है और जो दे रहा है वो हमेशा बड़ा है। ये जीवन का एक्सपीरियंस है, हमारा नहीं, हमारे पूरा ग्रुप का एक्सपीरियंस है। आई एम अ रोटेरियन। जॉय ऑफ गिविंग क्या आप दे सकते हैं? आप किसी को पैसा तो नहीं दे सकते हैं, आप किसी को मटेरियल कुछ नहीं दे सकते, लेकिन उसका हेल्प कर सकते हैं। अभी बाद में आप उसको अपने रिसोर्सेज के साथ हेल्प कर सकते हैं। अभी आप उसको कुछ किसी भी तरीका से हेल्प कीजिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की चेष्टा कीजिए। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, योर पेरेंट्स आर योर ओनली वेल विशर, बी ग्रेटफुल टू देम। फैमिली शुड बी गिवन मोस्ट प्रायोरिटी इन आवर लाइफ एंड सक्सेस इज नॉट वेरिड विदाउट फैमिली। मेरे दादाजी के छोटे भाई जो रानीगंज के नगर सेठ माने जाते थे इस समय, उनका बोलना था परिवार के बिना सफलता का कोई मजा नहीं है। आप कितने भी बड़े आदमी हो, अमेरिका के राष्ट्रपति भी आप अगर हो जाते हैं और परिवार आपके साथ नहीं है, आपकी सफलता का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आपकी सफलता का जश्न मनाने, उसको एंजॉय करने के लिए आप अपने मौजूद नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। योर माइंड इज सुपर पावर हाउस when this is managed with focus, clarity, concentration, determination and perseverance। जैसा मैंने कहा, in case of any confusion, कभी भी आपको जरूरत है, दूसरों से पहले आपके पास अपने पास चीज़ें मौजूद है, आपका माइंड भी मौजूद है और आपके भीतर का जो साइंस है वो मौजूद है। उसको अगर सुनने में की आप क्षमता विकसित कर लेते हैं तो बहुत सारा काम आप ऐसा कर सकते हैं जो आप कभी जीवन में नहीं सोचेंगे, या फिर आपको लगता है कि हम अचीव नहीं कर पा रहे, दूसरा अचीव कर पाए। इसको चेष्टा कीजिए, अगर ये कर पाए बहुत कुछ कर दीजिए। हम आपको एग्जाम्पल भी देंगे। आपके गोल्स क्या होने चाहिए? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आप अगले 1-2 महीना, 1 साल, 2 साल की क्या करेंगे, और लॉन्ग टर्म में मैं क्या करना चाहता हूँ, वो मेरा टारगेट है, वो आपका होना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड फॉर बिगर अपॉर्चुनिटीज एंड पुट फर्स्ट ऑन फाइनल स्टेज। फाइनल जीतना हर किसी का मुख्य उद्देश्य होता है, लीग में जीतने से कुछ नहीं होता। लीग मैच में आप जीती है, लेकिन टारगेट आपका फाइनल होना चाहिए। जब आपकी फुल एनर्जी फाइनल में होनी चाहिए, आपकी एनर्जी को फाइनल के लिए बचा के रखिए, लेकिन जितना आपको हमेशा लीग मैच भी है। आप जो आपकी जो जर्नी की जो ड्यूरेशन होगी या जर्नी जो आप जिएंगे उसको तो जिए, लेकिन अपनी क्वालिटी कैपेसिटी को बढ़ाते रहिए। और जब आपका एक समय ऐसा आएगा जो बिगर अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएगी, बहुत लोग बिगर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पाते। अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड है मेंटली, फिजिकली और हर तरीका से, आप उस बिगर अपॉर्चुनिटी जब आपके समय के सामने आएगी आप उसको ग्रैब करके दूसरों के लिए आप एग्जाम्पल बन पाएंगे, तब आप भी कभी खड़े होकर किसी को समझा पाएंगे। ये बात याद रखिए। अब मैं मेरी लाइफ से संबंधित कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कॉलेज में जब मैंने इंटर किया था, मैं उसके बाद 15 साल पूरा हो गया, मैं अपना 15वां जन्मदिन कॉलेज में मनाया। रोल नंबर 1 था, 250 से 300 स्टूडेंट। वो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था, वो संयोग से हो गया, भगवान ने मुझे रोल नंबर 1 दिया कॉलेज में। आई वॉज द मोस्ट पॉपुलर
student in my college, not class. बालोटिया की तरह कॉलेज का नाम भी बालोटिया। अपॉर्चुनिटीज का मैं आपको बताऊं जो मेरे लिए जो था, चाइना गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया से 3-4-5 लोगों को इनवाइट करने की चेष्टा की, वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के इन्विटेशन की 10 देशों के 35 लोगों को लोगों ने इनवाइट किया। मैं रानीगंज टाउन है, शहर नहीं है, सिटी नहीं बोल रहा, टाउन। उनका जो क्राइटेरिया था, जस्ट मैंने चेष्टा की, एम्बेसी से मेरा इंटरव्यू हुआ और मुझे ढंग से आता भी नहीं था कैसे उनको हैंडल करना है। मेरा सिलेक्शन हो गया अन्य 4 लोगों के साथ, 3 लड़के 3 लड़कियाँ, एक थी मुंबई की, दिल्ली की, बड़े बड़े ओहदों पर वो थे, और एक गोवा की, और एक दिल्ली का था लड़का, और एक मैं था। मैं तो बहुत छोटे टाउन से था, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं जानता था। आप सुन के आश्चर्य करेंगे, पिक्चर स्टाइल में हम लोग सब मिले वहाँ पर दिल्ली स्टेशन, एक ग्रुप बना, वहाँ से हम लोग चाइना के लिए गए। 22 दिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के इन्विटेशन पर हम लोगों ने उन 10 देशों के लोगों के साथ हम लोग एक ग्रुप बना के रहे। और आपको जान करके खुशी और आश्चर्य होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के इंटरनेशनल बिजनेस के हेडक्वार्टर, एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर कम से कम 50 लोगों के लोग इधर उधर घूम रहे थे, जो एवरेस्ट ऑफ बिजनेस माना जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस में चाइना नंबर 1 है। आपको जान करके आश्चर्य और अच्छा लगेगा कि वहाँ पर जब मैं गया ओपनिंग सेशन में, मेरे को ले गया, रात को बोला भाषण देंगे, तो मुझे हाथ दे देंगे भाषण, कोई बात नहीं, आप लिख दे दीजिए। 2 घंटा लगा भाषण देने में, भाषण लिखना लिख दे दीजिए। जब हम गए तो 32 लोगों का टेबल में लगा हुआ नाम, प्लेट वगैरह नहीं, हम घबरा गए, चढ़ना में जाके ऐसे ही कुछ नहीं जानते, ना तो लगा हुआ नहीं है, क्या करें। अचानक देखते हैं कि डैशबोर्ड में बना टेम्पलेट लगा हुआ, और आपको जान करके अच्छा भी लगेगा, एज गेस्ट ऑफ ऑनर और एज लीडर ऑफ द हाउस मेरे को वहाँ पर स्पीच डिलीवर करने का मौका दिया गया ओपनिंग सेरेमनी में, जो मेरे लिए तो असंभव काम था। क्यों था? क्योंकि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और वहाँ तक अप्रोच उसी से आता है। नहीं तो कहाँ मेरा रियल और कहाँ चाइनीज एम्बेसी। और कॉन्फिडेंस भी डिसिप्लिन से है। इसीलिए मैंने ये आपको छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सिंपल है लेकिन वो मार करती है भीतर तक, इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर करना। और भी चीज़ें हैं लेकिन समय लिमिटेड है। एक और एग्जाम्पल आपको बताऊँ, आई वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ दैट चैम्बर ऑफ कॉमर्स विच इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन ईस्टर्न इंडिया आफ्टर कोलकाता, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो हम लोग हर मामलों में आगे हैं। कैसे हुआ? 14,000 वोट जीतते थे उसमें, 3 बार में प्रेसिडेंट बना लगातार, 14,000 वोट जीतते थे। और 14,000 वोट में हमारी टीम समाज 1 या 2 वोट से जीतती थी। 2 बार हम लोग 1 या 2 वोट से जीते। 14,000। आप अगर चेष्टा करेंगे, जबकि मेरे सामने जो ओपोनेंट थे 20 गुना ज़्यादा शक्तिशाली, मैं यह इसकी रिकॉर्ड और आपका मैं आपको बोल रहा हूँ, 20 गुना से ज़्यादा हो सकता है शक्तिशाली। अगर आप कहीं पर खड़े होते हैं अपनी आइडेंटिटी के साथ, हो सकता है आप ऐसी जगह पहुंचे हैं जो आप सोचे भी नहीं। आज वर्किंग एक्सपीरियंस होते होते रोज कहीं ना कहीं किसी का फैमिली, किसी का बिजनेस, किसी का कोई ना कोई हर तरह का काम था। हफ्ता में 4-5-6 केस तो मैं सॉल्व करता हूँ, हस्बैंड वाइफ भी, क्योंकि मेरे को ट्रबल शूटर हिस्सा में लिया जाता है। और चूंकि मैं विश्वसनीय हूँ, लोग विश्वास करते हैं कि भाई उनके पास जाएंगे तो मेरा काम होगा, मेरा काम करना पड़ता है, करते हैं। जीवन में क्या होना चाहिए, कोई व्यक्ति को सक्सेसफुल कैसे माना जाएगा, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। हम लोग ये जानते हैं कोई अगर पैसा वाला है तो बहुत सक्सेसफुल है। हमारे कवि दत्ता साहब है, हमारे मित्र है, रतन अग्रवाल है, उनको भी शायद आप लोग उनमें से कुछ लोग जानते हो। रतन अग्रवाल वीर साइकिल फैक्ट्री के मालिक। आपके पास पैसा तो होना जरूरी है, लेकिन उसके अलावा अगर हेल्प नहीं है तो आप उस पैसा को एंजॉय नहीं करेंगे। वेल बैलेंस्ड फैमिली विथ प्रॉपर और सोशल स्टेटस, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सक्सेसफुल तभी है जब आपके पास पूरा है, प्रॉपर हेल्थ हो, आपके पास मनी हो, आपका कैरेक्टर अच्छा हो, वेल बैलेंस्ड और स्टेबल फैमिली हो और गुड सोशल स्टेटस हो। ये 5 चीज़ें आपके पास अगर है
आप जीवन में अटूट है, आपके जैसा व्यक्ति दूसरे आपसे जलेंगे, दूसरे आपसे कंपेयर करेंगे, आपके साथ आपके जैसा बनना चाहेंगे। आपको बनना ये है, ये बने आप तो जीवन में आप कभी किसी से नीचे नहीं देखेगा। मैं जब वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे उस समय गोपाल कृष्ण था, कुछ नहीं था, मेरे पास इन्विटेशन भी नहीं था। चला गया प्रोग्राम में, वहाँ पर बिरला की कोई आर्ट गैलरी थी, गया, बोला आप कौन? भैया हम रानीगंज से आए हैं, चंद्र कुमार से संदीप बाबू। मेरी आइडेंटिटी काम करने से जो बनी, कहीं भी मैं जाता हूँ मैं संदीप बाबू, आगे पूछे क्या है तो मेरे पास बहुत सारा बैनर है, मैं काम करके वहाँ तक पहुँचाऊँ। आप अपनी आइडेंटिटी को अगर बना पाते हैं, वर्किंग आइडेंटिटी, तो दुनिया में कहीं भी आप वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आपके सामने जो भी खड़ा हो, आप उससे आराम से बात कर सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं किसी से। जिद्दी होना, जील जो बोलते हैं इंग्लिश में, जिद्दी का मतलब नेगेटिव में भी लिया जा सकता है, पॉजिटिव में भी लिया जा सकता है। दृढ़ता जो बोलते हैं, परसिवरेंस, उसको जिद्दी हम लोग बोलते हैं। जिद्दी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अपने उद्देश्यों के प्रति होना चाहिए, अपने काम के प्रति होना चाहिए, दूसरों के लिए होना चाहिए, अपने परिवार के लिए होना चाहिए। अब मैं आता हूँ आपके प्रोफेशनल कैरियर को कैसे कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हो सकती है। जैसा कि सर ने मुझे बताया, उसके लिए या स्टार्टअप होते हैं, नया बिजनेस करने वाले होते हैं। जब फर्स्ट लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है वो स्टार्टअप में है, कॉन्सेप्ट पिछले कुछ समय से है। स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी, उसके बारे में आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। उसके लिए जरूरी है डिसिप्लिन, इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप अपने कार्यों को कैसे पूरा करें। इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी है सोशल मीडिया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कनेक्टिविटी जो आपका इंस्टीट्यूट कर रहा है, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत बड़ी बात है। और इंफॉर्मेशन शेयरिंग से बहुत सारा काम, क्योंकि चाइना से मेरा इंफॉर्मेशन शेयरिंग था तो बोल के मैं वहाँ पहुँचूँगा। और भी बहुत सारे अचीवमेंट हैं जो मैं आपके साथ, क्योंकि समय लिमिटेड है, मैं उतना लिमिटेड ही करना चाहूँगा आपके साथ। कनेक्टिविटी, आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जब आपका टारगेट है या जो आपका सपना है, उन चीज़ों के प्रति या उससे संबंधित जो चीज़ है, क्योंकि इंटरनेट एक बहुत बड़ा टूल है, उसमें बहुत कुछ अवेलेबल है, कुछ हद तक आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाती है। आपको सर्वे भी करना पड़ता है अपने जो एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने के लिए। डिस्कशन कीजिए लाइक माइंडेड पीपल से, दोज हु आर सक्सेसफुल इन दैट सेगमेंट विच यू आर गोइंग टू, आपको उसमें हेल्पफुल मिलेगी। आप मिलिए उससे। हो सकता है शुरुआती दौर में वो आपको एक्सेप्ट नहीं करें, शुरुआती दौर में वो बोले कि नहीं हम आपके तरफ टाइम नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग चाहते हैं कि अगर नई जनरेशन आते हैं तो उनको हम लोग कहीं ना कहीं गाइड करें, हेल्प करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कशन कीजिए, लोगों से मिलिए, अपना परिचय दीजिए। ट्रायल चाहे तो कुछ लोग ट्रायल ले सकते हैं, अब अगर संभव हो तो। इम्प्लीमेंटेशन, अब इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। एक टैग लाइन है जो मैं बहुत कई सालों से बोलता हूँ, इंडस्ट्री और बिजनेस, आप जो भी करेंगे या आप जॉब करेंगे, इंडस्ट्री और बिजनेस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्सीलेंस ऑलरेडी प्रेजेंटेड में। आप अपने एक्सीलेंस को अभिव्यक्त करेंगे, उसको कार्य रूप में परिणत करेंगे, उसको प्रैक्टिकल रूप में उतारेंगे, उसी का नाम इंडस्ट्री या बिजनेस है। उसमें आपको रिस्क भी लेना है और आपके माइंड में जो एक्सीलेंस है उसको आपको कन्वर्ट करना है रिजल्ट, यही इंडस्ट्री का बिजनेस है। अब इसमें क्या मीन्स है आपके पास, डिफरेंट गवर्नमेंट, अच्छा दो तरह का, तीन तरह का बिजनेस है या इंडस्ट्री, सर्विस बिजनेस प्रोफेशन है, सर्विस बिजनेस या इंडस्ट्री, तीन काम आप कर सकते हैं प्रोफेशनल के लिए। अगर आपको प्रोफेशनल जॉब करना है तो वो अलग करते हैं। अब बिजनेस में किस तरीके से आप कर सकते हैं या इंडस्ट्री या सर्विसिंग कर सकते हैं। आप खुद अकेला बिजनेस कर सकते हैं जिसको प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, पार्टनर कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर सकते हैं, LLP कर सकते हैं, नया कॉन्सेप्ट कुछ सालों से आया है। और पब्लिक लिमिटेड लिमिट बाद जब आप बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं तो पब्लिक लिमिटेड शेयर आप निकाल सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, असंभव कुछ नहीं है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस जो बहुत अच्छा ट्रेंड में है, कुछ लोग वो कर सकते हैं, फ्यूचर में आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इनिशियली करेंगे, है आपके पास। अब इसमें एक और जो फैक्टर है जो पिछले कुछ सालों से सुना गया है, लेकिन जिसके बारे में ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत कम अवेयरनेस है, बहुत कम सक्सेस स्टोरी है। वेंचर कैपिटल, आपके पास पैसा नहीं या आपके परिवार आपके अपने पैसा लगाने में इंटरेस्टेड कम, तो आप क्या करें।
बंगलोर में मेरा भांजा है, रॉकेट पे कंपनी है, आप देखिएगा इंटरनेट में, जैसे आपका रेजर पे होता है ना पेमेंट गेटवे, रॉकेट पे है। 3 साल में उन लोगों ने 3 लोगों ने मिलकर 100 करोड़ की कंपनी बनाई। अभी उसका 200 स्टाफ है। उसका जैसे अभी रिश्ते की बात आ रही है, तो बोलते कितना का पैकेज है, हम लोग यही बोलते हैं भाई वो तो 200 लोगों को मिलकर 40 लाख रुपये साल तक महीना का सैलरी देगा। तो अगर वो कर सकता है एक ग्रेजुएट होकर, तो आप भी कर सकते हैं। कंसंट्रेशन, परसिवरेंस, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, जो भी मैंने बताया वो अगर आप जितना अप्लाई करेंगे अपना लाइफ, उसी में उठना बैठना खाना पीना नहाना धोना सब कुछ कर सकते हैं, असंभव कुछ नहीं। वेंचर कैपिटल, बंगलोर, पुणे, हैदराबाद, वहाँ पर अगर आपको फंडिंग चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट पे लोग पैसा लगाने के लिए वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। हम लोग एक्सटर्नल मार्केट में जाने चुके, हम लोग को मालूम है, हम लोग से रूबरू नहीं है, बहुत कम लिमिटेड है वहाँ। यहाँ पर जहाँ से ज़्यादा वहाँ पर ज़्यादा होता है। वहाँ पर बता रहा था मामा मेरे को 3 सप्ताह लगा 5 करोड़ रुपये उठाने में। कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर बैंक आपको पैसा देता है, अगर बैंक से लेंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, रिस्क फैक्टर आता है, वो आपके पार्टनर बन जाएगा। और एक बात बताना भूल गया मैं, रॉकेट ट्रेन में पार्टनर है मिंत्रा का मालिक, और पार्टनर भी है और एडवाइजर भी है। क्यों? क्योंकि उसको काम करते करते एक्सपीरियंस हो गया था, उसमें एक ड्रीम था, एक विजन था, वो लोग मिल के 3 लोग मिल के काम किया। आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसीलिए मैं आया हूँ आपको ये बताने के लिए कि व्यावहारिक दुनिया में आप क्या कर सकते हैं। सम मोर यूजफुल फैक्ट्स फॉर यू। अच्छा, स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, आप कैसे कर सकते हैं? आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है इस काम को, अपने सपनों को आगे करने के लिए, बिजनेस को आगे करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए? बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम है जो स्टार्टअप के लिए विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी या आपका बिना पैसा लगाए आप कर सकते हैं, जिसके बारे में कभी मौका मिलेगा, जिसका मैं मोटिवेशनल स्पीकर पिछले सप्ताह मैंने आपके टीवी चैनल पर भी 1 घंटा का टॉक शो करके दुर्गापुर में गया, और करीब 3-4 महीना पहले भी एक्सप्रेस न्यूज और क्या 10 न्यूज़ 10 करके है, तो सब में आप देख सकते हैं, या फिर कभी जरूरत पड़ेगा तो हम उसके लिए आपके साथ शेयर करेंगे स्पेशली। उसमें आपको 50 लाख रुपये तक आप अपने गारंटी फ्री आपको पैसा मिलता है, 1 करोड़ रुपया मिलता है अलग अलग सेगमेंट में। अभी 5 लाख रुपये का बिना गारंटी का 4% सालाना इन्वेस्टमेंट करके 25 लोगों को दिलवा चुके हैं, 20-25 लोगों को और दिलवा है। फ्री है आपको काम करने के लिए, पैसा वैसा भी नहीं लगता है, कोई भी काम कर सकते हैं। सब मोर यूजफुल फैक्ट्स, इस टैगलाइन को याद रखिएगा। हर कोई जीवन में सक्सेसफुल होना चाहता है, दूसरों से आगे बढ़ना चाहता है, दूसरों से बढ़त लेना चाहता है, और चाहता है कि उसका सम्मान हो। सम्मान कैसे हो? आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है ना। द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज ए लिटिल एक्स्ट्रा। आप देखिएगा बढ़त कितनी है, बढ़त बहुत कम है, लेकिन वो बढ़त उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आपको भी बताइए, उसके लिए आपको जो करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। मीन्स ऑफ डूइंग, हाउ यू प्रोसीड, हाउ विल यू प्रोसीड। वॉच रियल हीरो, आपके अगल बगल, चाहे राशन दुकान वाला हो या आपका कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री करने वाला हो, अगर वो डिसिप्लिन वे में बहुत छोटे से स्टार्ट करके एक लेवल तक पहुँचा हो और वो आपका अटेंशन गेन कर रहा हो, या आपके मन में उसके प्रति रिस्पेक्ट कर रहा हो, वो रियल हीरो। रियल हीरो जो लोग देखते हैं वो रियल हीरो नहीं है। रियल हीरो कौन है? वही देखते हैं। रियल हीरो कौन है? आपके प्रेसिडेंट है, जिन्होंने सपना देखा था मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का। क्योंकि मिशन हॉस्पिटल से मैं उसके सिंस इंसेप्शन स्टार्टिंग से हम लोग रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने सोचा था, रिस्क लिया था उस समय जब उन्होंने लोन लिया था। सबको ये सोचता था कि लोन रिपेमेंट कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट उस समय पहला था इससे क्या मिशन हॉस्पिटल का, आपके प्रेसिडेंट का। उन्होंने किया, बाद में डॉक्टर गांवली उनके साथ थे, बगल में एक नया किए, आसनसोल में पूरा करिए। आज पायनियर को थोड़ा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि रिस्क फैक्टर सक्सेस उसके साथ है, फिर तो वो प्रोटोटाइप हो जाता है, फिर तो उसके बाद एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं। तो आप रियल हीरो को अगर वॉच करते हैं आपके आसपास, उसको स्टडी करते हैं, उनको रियलाइज करते हैं, तो आप रियल हीरो बन सकते हैं। रियल हीरो आप अपने परिवार की नज़र में, अपने दोस्तों की नज़र में, अपने भीतर में अगर आपको लगेगा मैं जो कर रहा हूँ सही हो, दूसरा के लिए वो एक एग्जाम्पल सेटअप कर रहा है, आप रियल हीरो और बन सकते हैं। उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को पहचानिए, स्टडी कीजिए। बांग्लादेश, जापान, बांग्लादेश तो बोलना नहीं पसंद है, मैंने उचित नहीं है। जापान और चाइना का सक्सेस मंत्र क्या है? कंसंट्रेशन टू वर्क। आपको जान करके आश्चर्य होगा, चाइना में मैं था, प्रोफेसर आता था यूनिवर्सिटी से, इंडियंस आर कंसिडर्ड एज लेजी, और ये सच।
मेरा बांग्लादेश का जो पार्टी था ना, फोन करना, दादा एक जिनिसटा बोलूँ तो हम 2 दिन आराम से बात कर रहे हैं, दादा तो 2 घंटा का अभी 2 दिन लगाए थे। तब मेरे को धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि बांग्लादेश का जो बिजनेस कम्युनिटी कुछ हद तक जो है, जो इंटरनेशनल बिजनेस करता है, दे आर कंसंट्रेटेड देयर सिस्टम। लेकिन हम लोग एक लोकतांत्रिक देश होने से कहीं ना कहीं हम लोग सबको लेके चलने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं स्लो है कंपेरेटिवली। चाइनीज आर नॉट स्लो, उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत है। मगर अगर आपको, क्योंकि इंडियंस जब देखिए बाहर जाते हैं तो उनका सक्सेस ये बोलने की जरूरत नहीं है। पिक्चरें भी मूवी भी जो बनती है, आप देखिए इंडियंस का एक से एक दिखाते हैं। रियल है, बहुत सारे रियल है। कनाडा में जाइए, यूएस में जाइए, यूके में जाइए, तो कंसंट्रेशन चाइना हो या जापान, जापान के बारे में कब बोला जाता है। और बांग्लादेश का अभी जो मेला हुआ उसके पहले था, बांग्लादेश लोग बहुत कंसंट्रेट करते हैं बिजनेस में, जो एक्चुअल बिजनेस कम्युनिटी है उसके बारे में। पिनाकल 20 साल से आप देखेंगे कंसंट्रेशन का सक्सेस स्टोरी है। स्टडी कीजिए ना, विजिट कीजिए। पटवारी जी को आप बोलिए काम करते हैं। महेश्वरी माइनिंग नाम सुना आप लोगों ने? महेश्वरी माइनिंग मेरे बड़े भाई राजीव बनड़ी वाला, संजीव बनड़ी, पता कीजिए कैसे क्यों। मेरे सामने का बात है, नो कंप्यूटर एसोसिएशन में खुला हुआ था, लेकिन कंसंट्रेशन। अब कुछ देखिए ऊपर वाले का भी इच्छा कुछ है, लेकिन आपको तो काम करना पड़ेगा। ईश्वर बोलता है काम करेंगे तब मैं सफलता की तरफ आपको बढ़ाने में चेष्टा करूँगा। जरूरी नहीं कि 10 में से 10 आदमी होगा, लेकिन मैक्सिमम आदमी होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। रॉकेट पे का मैंने आपको बताया, मिशन का बताया। थंडर जी हमारे रानीगंज के हैं, बाबूलाल सुमानी जी, आज 100 करोड़ का छोटा शुरुआत। एक आप देखते हैं एजी का अभिषेक ग्लास इंडस्ट्री, मेरे दोस्त मेरे से छोटा शुरुआत था, बहुत छोटा था, आप सोच नहीं सकते। आज एजी तक का एडवर्टीजमेंट देखते होंगे अभिषेक ग्लास इंडस्ट्री, आप उनसे मिलिए, मिला दें, आप देख के बंद रखेंगे। ये भी सक्सेस का एक तरीका है। बाबा गुरु रतन अग्रवाल का जैसे बोले, रतन अग्रवाल को साइन करना नहीं जानते थे, बोलते थे तो हम बोल सकते हैं। रतन अग्रवाल का नाम सुना है, आज यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी भी है, साइन करना नहीं है, बोला सर्टिफिकेट साइन करना नहीं जानते। आज वो सक्सेस की स्टोरी ली अपने लेवल, ये नहीं बोल सकते मल्टीप्लेयर, लेकिन अपने लेवल कौतुकली वो भी ठीक। कभी दत्तों का मैंने कह चुका है, विद गुड हेल्थ एंड विद फैमिली यू कैन एंजॉय द एसेंस ऑफ सक्सेस। क्योंकि अगर हेल्थ और फैमिली नहीं है तो सक्सेस आप बात बोलेंगे उसको निकल नहीं जाती। लाइफ ऐसी मिली है, दोबारा पता नहीं क्या होगा, जब तक है तब तक उसका मजा है। हर दिन आपका होना चाहिए होता हर दिन स्पेशल है। आप अपने कर्म को अगर करके निकलते हैं 7 को 6 बजे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, सेटिस्फेक्शन फील होगा। और सबको क्या चाहिए? खुशी। सेटिस्फेक्शन ही तो खुशी है। अगर आप सेटिस्फाइड है तो खुशी है, चाहे कोई भी लेवल पर कुछ भी हो। बी ग्रेटफुल, हेल्पफुल and try to maintain the relations at any cost whatever this is। यह मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस, अगर रिलेशंस आप कहीं होते जाते हैं जीवन में तो कहीं ना कहीं किसी स्टेट में आपको बदला रिलेट है, ये अभी के लिए नहीं है, बाद के लिए। एक टैगलाइन तो बोलना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। Those who are wealthy who earn more than expenses। अगर मैं 2 लाख रुपये कमाता हूँ तो मेरा खर्चा 50,000 रुपये है, तो मैं पैसा वाला हूँ। और नवा भी अगर 10 लाख रुपये कमाती हूँ, 15 लाख रुपये खर्चा है, तो गरीब। यह फैक्टर को समझिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो अपने खर्चे से ज़्यादा कमा रहा है वह पैसा वाला है, और जब वो पैसा वाला नहीं है जो ज़्यादा कमा रहा है और उससे ज़्यादा खर्चा कर रहा है। विजय माल्या, सहारा ग्रुप, आपको टिके रहना है जीवन के अंत तक सक्सेस के साथ। थोड़ा जब आप औसत स्तर पे रहते हो, सुनिएगा ध्यान देके, तब आप यह नहीं देखते कि ट्रेंड क्या है, आपको परवाह नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या करना है, क्योंकि आपका मेंटल स्टेट नहीं है, जो है चल रहा है। लेकिन जब आप थोड़े से आगे बढ़ते हो तो आप यह देखते हो कि ट्रेंड क्या है और मुझे ट्रेंड के साथ चलना, वह पढ़ना है, वह खाना पीना, रेस्टोरेंट जाना, एंजॉय करना है लाइफ।
लेकिन जब आप और आगे बढ़ते हो और अपने आप में सेल्फ अचीवमेंट करते हो, तो जो आप करते हो वो ट्रेंड बनता है, तब आप कुछ करना नहीं, वो बनने की चेष्टा कीजिए, तो लोग आपको देखें, आपके बारे में जानना चाहे, यही आपका मोटिवेशन है, यही आपका कमिटमेंट होना चाहिए अपने से। किसी को ईमानदारी बोलते हैं, कैरेक्टर की ईमानदारी, पैसों की ईमानदारी नहीं होती। अपने के प्रति अगर ईमानदार है तो आपसे ज़्यादा ईमानदार दुनिया में कुछ नहीं। बी योर ओन हीरो एंड सेटिस्फाई योर सोल, डोंट रन ओवर टू सेटिस्फाई अदर्स। अगर आप दूसरों के हिसाब से अपने जीवन को देखेंगे तो आप तकलीफ नहीं पाएंगे, आप कुछ नहीं पाएंगे। अपना गोल सेट कीजिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने की चेष्टा कीजिए। डोंट चेस ट्रेंड, क्रिएट ट्रेंड। क्योंकि हीरा और कोयला दोनों कार्बन है, लेकिन हीरा तब के कई दबाव को सहने के बाद हीरा बन जाता है, कोयला की तरह। एक फैक्टर आपको और बता दें जो आपके जीवन में आएगा, क्योंकि ज़्यादातर आप मिडिल क्लास से हैं, अपर मिडिल क्लास से हो सकते हैं, आपका बैकग्राउंड जैसा भी हो। यह सच है कि आलोचनात्मक टिप्पणियाँ आत्मविश्वास को विकसित करने के मार्ग में बहुत बड़ी बाधक होती है, पर ऐसा भी देखने में आया है, ऐसी ही कड़वी टिप्पणियों की बदौलत कई लोग कामयाबी के शिखर पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट लाइन, अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाओ और उसको अपनी एनर्जी में कन्वर्ट करो। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपको अपमान फील हो रहा है, आप दूसरों के सामने छोटा फील कर रहे हैं, आज आपको लग रहा है कि आप दूसरों के सामने नीचे हैं, या कोई आपको कुछ बोल दिया, कोई आपको कुछ बोल दिया, या आपको लग रहा हो कि आप कुछ नहीं, उसको अपना हथियार बनाइए, भीतर में उस चीज़ को अपने को एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए। तो मैं एक दिन ऐसा करके दिखाऊंगा कि जो व्यक्ति या लोग उस चीज़ को हम धो दें या उस चीज़ को हम ओवरकम कर जाए और हम ट्रेंड हों। आलोचनात्मक टिप्पणियाँ आत्मविश्वास को विकसित करने के मार्ग में बहुत बड़ी बाधक होती है, लेकिन इसी ही कड़ी टिप्पणियों की बदौलत कुछ व्यक्ति शिखर पर पहुँच गए हैं। एक एग्जाम्पल है, रानीगंज का एक लड़का, उसको उसका पिताजी को बेइज्जत किया पुलिस उसके सामने। आज वो इंडिया का वन ऑफ द, मतलब ग्रेजुएट होने के बाद इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट IAS ऑफिसर है, और इंडिया का बजट को तैयार करने में वो बहुत बड़ा ऑफिसर है। क्यों? क्योंकि उसको जिस दिन अपमान महसूस हुआ कि मेरा पिताजी को पुलिस ने अपमान किया, उस दिन से उसका मन में डिटर्मिनेशन आ गया, मैं ऐसा करूँगा तो लोग देखेंगे। अपनी कमजोरियों को हथियार बनाने की चेष्टा कीजिए और उसको अपनी एनर्जी में करना। मैं भी किया, क्योंकि मेरा जो शुरुआती बैकग्राउंड था वो मैं शेयर नहीं कर पाया आपके साथ, मेरे को दिक्कत होता, मैं बड़ी फैमिली का जरूर था, लेकिन सबसे जो लिमिटेशन जो था वो सेकंड, मेरा को गुस्सा आता था। कन्वर्ट कीजिए ना, क्या दिक्कत है? सिर्फ काम करके सीढ़ी से आप कहीं भी पहुँच सकते हैं, लेकिन आप कभी उतार नहीं पाएगा। कोई सीढ़ी से चढ़ेंगे, हवाई जहाज से चढ़ेंगे तो आपको उतार सकते हैं, समय नहीं उतार सकते, कोई नहीं ला सकता अगर सीढ़ी से चढ़ के ऊपर पहुँचे। और काम ऐसी चीज़ है जो लोगों को हम मानते थे कि वो मेरे को बचाने, एक समय ऐसे आया कि उनको मेरे पास आना। काम हो सकती है, काम मतलब अपना डिजिग्नेटेड ड्यूटी और वर्क। हारना नहीं, हराना है हर उस मुश्किल को जो मंजिल की राह में आ रही हो। यह जज्बा आप में होना चाहिए। जब आप किसी चीज़ को, एक डायलॉग है आप लोग सब सुने हैं, 10 बार सुने हैं, जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे बजाने में लग जाती है। अगर आप टारगेट बना लेते हैं, उसी में सारा दिन सोच रहे हैं, टारगेट आपका अचीव हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। देखा हुआ बहुतों का देखा। क्या करना है आपको? बोर्ड बना लीजिए, घर में स्लिप बनाइए, लिस्ट बनाइए, लिखिए, बार बार देखिए, अपना ड्राइंग रूम में लिखिए, बेडरूम में लिखिए, ये टारगेट है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, हमको तो ये बनना। आप बन नहीं पाए, ये अलग बात हो सकता है, लेकिन उसका नजदीक तो पहुँच जाएगा, हो सकता है उसके ऊपर पहुँच जाएगा। तो आप कम से कम आपको चेष्टा तो करना है। एक लाइन मेरी जो अपनी है, सक्सेस इज व्हेन यू लुक्स बैक एंड इट गिव्स यू रीजन टू स्माइल। मेरे पास शायद 20-25 हज़ार फोटो थी, 10 हज़ार तो मैंने डिलीट कर। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरे को सेटिस्फेक्शन होती है, खुशी मिलती है, स्माइल आती है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन को उस तरीका से जिया। हो सकता है कुछ कमजोरियाँ हों, गलतियाँ हों, वो अलग बात है, मैं मनुष्य हूँ, कर सकता हूँ, कोई गलती नहीं, लेकिन गलती होता है और बार बार की हुई गलती बदमाशी होती है, वो क्षम्य नहीं है। गलतियाँ क्षम्य, आप उसके लिए माफ़ी मांग सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं,
ये जरूरी है। एंड एट लास्ट, कल्पनाशीलता ही सृजन का आरंभ है। आप जो चाहते हैं उसकी कल्पना कीजिए, आप उसे पा लेंगे, और अंत में आप जो चाहते हैं उसका खुद ही सृजन कर लेंगे। विश्वास कीजिए, आप जो आज चाह रहे हैं, अगर आप सिस्टमेटिकली, ग्रेजुअली, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप बढ़ते हैं तो आप सोच नहीं सकते आप कहाँ पहुँचेंगे। क्योंकि ये देखा गया है कि जिनके जीवन में जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है उतना ही सक्सेस होने में उसको सुविधा मिली है। क्योंकि वो आप में कमिटमेंट, वो आप में कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल बन के आ जाता है, तो आप आगे बढ़ते हैं। जय हिंद। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई दुविधा हो, कोई बात हो, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं अगले पॉइंट से। सर, एक बात बता रहे थे आप स्कीम्स, जैसे आपको देखिए जो इंडियन काउंसिल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज के इसको स्कीम्स आप बता रहे थे, उसमें 50 लाख तक वो थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह थोड़ा सा 10 मिनट है। हाँ, वो दीजिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपका छोटा आप अप्लाई नहीं करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। क्योंकि आप हमारे देश में युवा हैं, पता नहीं आप किसको मोटिवेट करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को सिर्फ बच्चा समझिए, अपने एनर्जी लेवल है। हम नहीं जानते कि हम लोग यहाँ पर इस हॉल में जितने लोग उपस्थित हैं कल कहाँ कौन रहेगा। हो सकता है आप ऐसी जगह पर हैं, आपको देख के हम तो नहीं पहचान पाएंगे आपको, लेकिन हो सकता है इसके द्वारा कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी से हम लोग ये पहचान पाएंगे भाई वो तो वहाँ पहुँच गया। ऐसा बहुत एग्जाम्पल है। हम रॉकेट पे का हमारा भूजा का ही बोलते हैं आपको, ऐसा बहुत है। लिख के आपको दे सकते हैं, कभी मौका लगा तो 10-20 का एग्जाम्पल आपको देंगे। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ऐसा भी होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर कोई सक्सेसफुल होता है, लेकिन इतना सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने अपने काम को किया और सेटिस्फैक्टरी किया। अब स्किल के बारे में थोड़ा जल्दी बताएं, क्योंकि टाइम का लिमिट है अपना। अंत में मैं यह बात बोलना भूल गया। एट लास्ट, एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू गॉड और ऑलमाइटी फॉर हिज ब्लेसिंग्स। क्योंकि हम लोग जो भी करते हैं, हम लोग को जो रिसोर्सेज मिले हुए हैं, आज मैं यहाँ पर आया हूँ, आप इतने बढ़िया कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्या आपको तो मिला? बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है ऐसा कॉलेज में पढ़ना, या इस तरह की फैसिलिटी को इन्जॉय करना, इस तरह की फैसिलिटी और फैसिलिटी आपको नहीं मिलती। तो गॉड के प्रति, ऑलमाइटी के प्रति, जिसका जो भी भगवान है, उसके प्रति हम लोगों को हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। अब मैं बताता हूँ आपको, आपके प्रोफेशनल करियर को स्टार्ट करने में गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कई सारी स्कीम्स लेके आई है, जिसको स्टार्टअप के रूप में हम लोग ले सकते हैं, या फिर उसको आप बिजनेस डेवलपमेंट में हम लोग लेते हैं। बिजनेस, उसमें तीन प्रोफेशन मैंने बताया। बिजनेस मतलब कोई भी ट्रेडिंग, खरीद के बिक्री करना। दूसरा इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना। तीसरा है, इंडस्ट्री नहीं आता, सर्विस, किसी भी तरह की सर्विस को देना, जिसका कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ब्यूटी पार्लर या ट्रेनिंग सेंटर, ये सब। जैसे आपके आईटी सेक्टर है, वो आ गया सर्विस इंडस्ट्री। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है स्टेट गवर्नमेंट अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा। उसमें अगर आप 50 लाख रुपये तक एक स्कीम है जिसका नाम है PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। पहले 25 लाख रुपये तक कर सकते थे। जगह भाड़ा का आप ले सकते थे, जगह आपको कोई भी अपना जगह नहीं है, मान लीजिए कोई कमजोर बैकग्राउंड का है, भाड़ा ले लीजिए, या आप लीज में ले लीजिए 5 साल का, आपको डिपार्टमेंट एलिजिबल कर देगा। उसके बाद 50 लाख रुपये तक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के साथ 20 लाख रुपये तक आपको उसमें लोन मिल सकता है। कंडीशन क्या है, आपको अपना 5 से 10% पैसा लगाना है, तो आप जुगाड़ कर सकते हैं। मान लीजिए 10 लाख रुपये का अगर आपको मिल जाए तो 50 लाख रुपये या लाख रुपये लगाना है। इसका क्या है, 5 इसमें स्पेशल कैटेगरी आता है, महिला, SC/ST, माइनॉरिटी, हैंडीकैप और हिली एरिया, उसको 5% लगाना है, उसको सब्सिडी भी ज़्यादा मिलेगा, और बाकी को 10% पैसा लगाना है। बाकी 15 से 35% सब्सिडी, मतलब जो आपको गवर्नमेंट एक सब्सिडी के रूप में देती है आपको इंकरेज करने के लिए, वो आपके बैंक में आके जमा करेगा। मान लीजिए पंचायत में लगाएंगे, महिला स्पेशल कैटेगरी तो 35%, और अगर शहर में लगाएंगे तो 25%, और नॉर्मल कैटेगरी 15% यहाँ, 25% आपको सब्सिडी मिलेगा। बाकी 50, 60, 65, 70% जो पैसा है वो आपको रिपेमेंट करना बैंक को 5 से 7 साल नॉर्मल इंटरेस्ट है। आपको बिना गारंटी के स्कीम गवर्नमेंट दे रहे हैं कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी 50 लाख रुपया। मजा की बात यह है
कि आपको सब्सिडी, अगर आप 50 लाख रुपया लोन लेते हैं तो 17.5 लाख रुपया मैक्सिमम आपको सब्सिडी मिलती है, बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, अगर आप 50 लाख रुपया दे देते हैं तो अगले बार आपको 1 करोड़ मिलेगा, है ना आपके स्टार्टअप के लिए बढ़िया स्कीम। और ऐसे में आपका IT सेक्टर में या आपका फूड प्रोसेसिंग में बहुत सारे अलग अलग स्कीम भी है, जिसके ऊपर लोग चर्चा कर सकते हैं। आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उनको आप इन्वाइट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा भी एक छोटी सी स्कीम है, कोई भी कुछ भी बिजनेस करने के लिए, घर से, ऑफिस से, या अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपये तुरंत आपको 1-1.5 महीना में बहुत मिनिमम पेपर से बिना गारंटी के 4% सालाना इंटरेस्ट और 10% सब्सिडी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25,000 आपको वो स्कीम हम बताएं ना। 25 लोगों को मैंने दिला चुके हैं, 20 लोग लाए थे, सरकार को 50 लोगों को दिलाते हैं। मदन सिंह जी एक्सप्रेस वाला को तो बोला कौन सी स्कीम है? उसको बोलते हैं भविष्य क्रेडिट कार्ड, हुआ है। उसके बाद महिलाओं और SC/ST के लिए, मतलब लेडीज के लिए, लेडी लोग को सुन नहीं रही है, उनको जानना चाहिए। अपने घर में लेडी लोग भी बता सकती है, वो लोग 1 करोड़ रुपये अब तक 10 लाख से बिना गारंटी के आपको बहुत ईजी टर्म्स में लोन मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और अगर कोई दिक्कत होता है तो हर जगह चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपके बगल में सिटी सेंटर में है, DIC, उससे कनेक्ट कीजिए, दरकार होगा तो मैं हूँ। ये तो हो गया। इसके बाद एक और स्कीम है आपका क्रेडिट गारंटी स्कीम है, उसमें 10 करोड़ रुपये तक अभी लिमिट होती है। 1 करोड़ वो धीरे धीरे बढ़ता है। 1 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ लिए 10 लाख ये मैकेनिज्म है गवर्नमेंट्स का, डिफरेंट गवर्नमेंट्स का। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से सब्सिडी देती है, वो इंसेंटिव जिसको बोलते हैं, तो बहुत सारे तौर तरीके हैं। और जब आपको ऐसा ज़रूरत पड़ता है तो आप जब एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी स्कीम्स मिल जाएगी। और जिसका मोटिवेशनल स्पीकर भी जिसे सोचो 50 लाख में 15 साल से कम है, तो यह है। और इसके अलावा नॉर्मल लेवल पर अगर कोई बिजनेस करना चाहे, इंडस्ट्री 30 से 40% अपना पैसा होना चाहिए, बाकी अपनी कोई दिक्कत नहीं, जितना का जैसे चाहे। सपोर्ट सिस्टम जो है हर जगह हर कुछ मौजूद है, ऑफिसर्स पहले से ज़्यादा बेटर हैं। और हम लोग चेष्टा करते हैं एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड बेनिफिशरीज, मीन्स इंटरप्रेटर्स। कोई दिक्कत ऐसा है हम लोग हर महीना में या 1.5-2 महीना में DM साहब के साथ, लाइन डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करते हैं। कुछ दिक्कत आता है तो उसको सॉल्व करने की चेष्टा करते हैं अकेडमी। और अगर कोई कुछ पूछना चाहे, किसी का कोई क्वेरी है तो कुछ ही होगा मेरे, आप लोग कुछ पूछना पूछ सकते हैं, कुछ नहीं। क्योंकि मैं इसमें सब तरह की बातें की और जीवन से संबंधित हूँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, हमें ऐसी बहुमूल्य शिक्षा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर अथॉरिटी सर टू प्रेजेंट द मैटर। Yeah, after this, इसके बाद all students now after this come forward. सर थोड़ा आ जाइए। Students, please come forward for a group photo. On your back.